Good morning, everyone. Thank you so much for joining for the webinar today. We are just few minutes away from starting the webinar. Please be seated. Just few minutes before we start. So, very good morning. So, I'm delighted to welcome Dr. Vikram Shah. He is India's most distinguished orthopedic surgeon and a globally respected pioneer in joint replacement surgery. With more than 32 years of surgical experience and over 1.75 lakhs joint replacement surgeries to his credit, he is internationally recognized for redefining modern orthopedic care and making advanced joint replacement surgery accessible to the thousands of patients across the globe. So I welcome Dr. Vikram Shah. He is here with us. And with us also we have Dr. Bharat Gajjar, who is heading the Global Orthopedic OPD department at Shelby Hospitals. So now we will start with some few videos which we feel that will surely help us understand over how does the hip replacement surgery and orthopedic surgery actually helps us. And then we will move towards the Q&A sessions slowly. So allow us a minute. We'll start with videos. इंडिया में या नेपाल में हिप रिप्लेसमेंट का जो औसत है वो काफी कम है, क्योंकि अपने हिप में आर्थराइटिस कम होता है, नी आर्थराइटिस बहुत कम होता है। मेरा नाम मंदाबेन शाह है। 1986 में एक्सीडेंट के बाद शेल्बी में भर्ती होना पड़ा। यहाँ मेरे दोनों पैरों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद सिर्फ 17 दिनों में मैं फिर से स्कूटर चलाने लगी। पेशेंट के फायदे में है तो रोबोट कहाँ मेडिकल फील्ड में यूज होता है वो आपसे जानने की इच्छा है। रोबोट एवं रोबोटिक सर्जरी अभी कैंसर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इत्यादि में उपयोग होने लगा है।
Yes, my name is David Otich. I went to Shelby in the month of July for total hip replacement on my left leg. Indeed, an experience which is very pleasant in that, and indeed, I'm so happy with the treatment I got in Shelby. Appreciate it. And praise goes to Dr. Shah. माय नेम इज सौरव अग्रवाल। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ दिनों से हिप में प्रॉब्लम थी, दर्द हो रहा था, उसकी वजह से हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। मेरे रिलेटिव से पता चला सेल्वी हॉस्पिटल के बारे में अहमदाबाद में, सर से मिलने, विक्रम सर से, तो उन्होंने भी देखा, THR बोला कि करा लीजिएगा तभी आपका ठीक होगा। तो मेरी सर्जरी हुई। अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है आगे, और यहाँ का स्टाफ, डॉक्टर सब कुछ बेस्ट है, सब कुछ गुड है। Hello everyone, my name is Ivy Bochaberi Mbongi. My mom's name is Jemima Kerubo Mbongi and my dad is Henry Kerama Mbongi. We come from Nairobi, Kenya. We came for treatment for hip because of arthritis. We are really happy with the treatment in terms of every department in Shelby Hospital, starting from the surgical team led by Dr. Vikram. Is joint pain making simple activities like walking, sitting, or climbing stairs difficult? You don't have to live with this pain. Let's understand how hip replacement surgeries can help restore movement and improve quality of life. The hip joint is a ball and socket joint, where the ball of the thigh bone fits into the socket of the pelvis. This structure allows smooth and flexible movement. But due to arthritis, injury, or age-related wear and tear, the cushioning cartilage wears away. This causes pain, stiffness, and reduced mobility, making even basic movements uncomfortable. In hip replacement surgery, the damaged parts of the joint are carefully removed. First, the worn-out ball at the top of the thigh bone is replaced with a smooth artificial ball, usually made of metal or ceramic. A stem is inserted into the thigh bone to support this new ball securely. Next, the damaged socket in the pelvis is cleaned and reshaped. It is then fitted with a durable artificial cup, often lined with a special material to allow smooth movement. Together, these components recreate a new, smooth functioning hip joint. After surgery, patients usually experience significant pain relief. Movement becomes smoother, and daily activities like walking and sitting become easier. With proper rehabilitation, many patients return to an active and independent lifestyle. Recovery plays a crucial role in the success of joint replacement. Patients are usually encouraged to start moving within a day after surgery, under medical supervision. Physiotherapy helps strengthen muscles, improve flexibility, and restore movement. Hip replacement surgeries are safe, advanced, and widely performed across the world. With modern techniques and experienced surgeons, the procedures are highly precise and reliable. Millions of people have successfully regained mobility and improved their quality of life through these surgeries. Imagine walking without pain, climbing stairs with ease, and getting back to the life you love. With the right treatment, it's possible. Don't let joint pain hold you back. Consult the experts at Shelby Hospitals and take the first step towards a pain-free life.
जीवन में कभी कभी दर्द इतना बढ़ जाता है कि हर कदम एक चुनौती बन जाता है, लेकिन इस सफर में अकेले नहीं हैं आप। शेल्बी हॉस्पिटल में हिप रिप्लेसमेंट की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और आरामदायक होती है। आइए आपको समझाते हैं कदम दर कदम। पहला कदम, मरीज दर्द लेकर अस्पताल आता है। चलना मुश्किल हो जाता है, हर कदम पर बेचैनी होती है। यहीं से इलाज की शुरुआत होती है। टोटल हिप रिप्लेसमेंट ये ऑपरेशन 1970 के समय से दुनिया में होता है। 70 से 90 95 तक 2000 साल तक सीमेंटेड हिप होते थे। इसके बाद 2000 के बाद ज्यादा से ज्यादा सीमेंट रहित अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट होने लगे और इसके कारण लोगों की जिंदगी में और जीवन की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ। दूसरा कदम, ओपीडी में डॉक्टर विक्रम शाह से परामर्श। वे एक्सरे और जांच के आधार पर सटीक निदान करते हैं। अगर हिप रिप्लेसमेंट जरूरी होता है तो वे पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं और हर सवाल का जवाब देते हैं। सर्जरी कब करनी है ये डॉक्टर को तय नहीं करना होता, ये मरीज ही तय करता है। मरीज को अपनी परेशानी की मात्रा खुद तय करनी होती है। 30-40 साल के युवा बहन हो या भाई हो, काम करते हो, हाउसवाइफ हो, अगर वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी ठीक से जी नहीं पा रहे हो, काम धंधा करने में दिक्कत आ रही हो, तो सब कुछ छोड़कर घर बैठकर जिंदगी नहीं कटने वाली। इसीलिए मरीज को अपनी समस्या का आकलन करना चाहिए कि उसका काम कितना बाधित हो रहा है। दर्द की गोली से जिंदगी नहीं कटती। दर्द की गोली नियमित रूप से नहीं खानी चाहिए, वरना किडनी पर उसका बुरा असर होता है। तो दवा गोली के बिना आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, तो ऑपरेशन की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अगर दवा गोली लेनी पड़े या फिर विकलांगता इतनी हो कि रोजमर्रा की जिंदगी में तकलीफ होती हो, तो जरूर ऑपरेशन पर विचार करना चाहिए। बात रही कि कैसे करना चाहिए, तो मिठाई की दुकान में भी ऐसा होता है कि भाई बंगाली मिठाइयों के स्पेशलिस्ट, वैसे ऑर्थोपेडिक के विशेषज्ञ अस्पताल भी होते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के विशेषज्ञ सर्जन होते हैं और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम के लिए सर्जन का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। लंबे समय का परिणाम सर्जन के कौशल और किस तरह के अच्छे इम्प्लांट इस्तेमाल किए गए हैं उस पर बहुत निर्भर करता है। सर्जन के कौशल की बात करें तो शेल्बी अस्पताल में 30 साल से हिप रिप्लेसमेंट होता है और 30 साल से हमारी यह सेवा हमारे लिए गर्व की बात है। यहाँ तक कि जयपुर की महारानी गायत्री देवी का हिप रिप्लेसमेंट विक्रम शाह ने ही किया था, मैंने ही किया था। इसीलिए ऐसे वीआईपी भी यहाँ आने से हिचकिचाते नहीं हैं। तीसरा कदम, सर्जरी तय होने के बाद मरीज को शाल्बी के सुसज्जित रूम में एडमिट किया जाता है। यहाँ का वातावरण हौसला बढ़ाता है और पूरी टीम मरीज को अगले चरण के लिए तैयार करती है। चौथा कदम, ऑपरेशन थिएटर। अत्याधुनिक तकनीक और विशेषज्ञ सर्जनों की टीम के साथ हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी की जाती है। ये प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और अनुभवी हाथों में होती है। अभी अगर आप सबसे नया संयुक्त काम गिने तो नया और पुराना दोनों, तो वह अनसीमेंटेड जॉइंट है। अनसीमेंटेड जॉइंट में सिरेमिक ऑन पॉली आर्टिकुलेशन कहा जाता है, जो अधिक सिद्ध है। कई विज्ञापन तो सिरेमिक ऑन सिरेमिक के आते हैं, लेकिन ये एक सिद्ध जोड़ नहीं है। सिरेमिक ऑन पॉली और पॉली का जो आर्टिकुलेशन होता है, यदि वह आर्टिकुलेशन विटामिन ई पॉली के साथ किया जाए तो जोड़ का जीवन काल काफी बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो पॉली होता है इसमें घिसाव होता रहता है और विटामिन ई पॉली 5 गुना ज्यादा मजबूत है, जिससे घिसाव कम पड़ता है। ये जॉइंट टाइटेनियम धातु का बनता है और पूरा टाइटेनियम का स्टेम होता है जो आपकी फीमर हड्डी में जाता है। हेड सिरेमिक का आता है और सिरेमिक ऑन पॉली जॉइंट बनता है। टाइटेनियम के शेल पर फिट हो और दोनों टाइटेनियम के भागों पर प्लाज्मा कोटिंग हो। यह प्लाज्मा कोटिंग हड्डी के अंदरूनी विकास को बढ़ावा देती है और 2 से 3 हफ्तों में मरीज पूरी तरह से अपना पूरा वजन डालकर चल सकता है। संक्षेप में अनसीमेंटेड जॉइंट का ही उपयोग करना चाहिए। उसमें दोनों कंपोनेंट टाइटेनियम के हों, उस पर प्लाज्मा कोटिंग हो, सिरेमिक हेड और विटामिन ई पॉली का उपयोग करें। साथ ही साथ युवाओं में किया जाता है, इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो फेमोरल स्टेम हो उसमें रिड्यूस्ड डिजिटल प्रोफाइल हो, उसे आरडीपी कहते हैं, और अगर न हो तो मरीजों को जांघ में दर्द होता है और बहुत से मरीज परेशान होते हैं। सभी जोड़ बनाने वाली कंपनियां कम डिजिटल प्रोफाइल वाले जोड़ नहीं बनाती।
पांचवा कदम, सर्जरी के अगले दिन ही मरीज उठना शुरू कर देता है। फिजियोथेरेपिस्ट के सहारे पहला कदम रखा जाता है। यही वो पल है जब मरीज को लगता है कि अब दर्द से मुक्ति मिलने वाली है। आमतौर पर अगर रूटीन केस हो तो शेल्बी में जिस दिन ऑपरेशन होता है उसी दिन खड़ा कर दिया जाता है। 4 दिन में सीढ़ी चढ़े उतरे, 1 हफ्ते में घर जा सकते हैं, 10 दिन में पट्टी निकलती है। अधिकांश मरीजों में टांके इस तरह लगाए जाते हैं कि वे भूल जाते हैं। 15 दिनों में मरीज सामान्य रूप से चल सकता है और 1 महीने बाद गाड़ी स्कूटर चला सकता है। यदि सिटिंग जॉब हो तो 15-20 दिनों में शुरू कर सकता है और यदि ट्रैवलिंग जॉब हो तो 1 सवा महीना। छठा कदम, सिर्फ 6 दिनों में मरीज डिस्चार्ज के लिए तैयार। डॉक्टर की थपथपाहट और परिवार की खुशी के बीच मरीज अपने पैरों पर खड़ा होकर अस्पताल से बाहर निकलता है, बिना किसी सहारे, बिना किसी डर के। 7वां कदम, और यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद मरीज न सिर्फ बिना दर्द के चल सकता है, बल्कि साइकिल चला सकता है, दौड़ सकता है, मैराथन में हिस्सा ले सकता है, स्पोर्ट्स खेल सकता है और यहाँ तक कि गरबा भी कर सकता है। यही शेल्बी का भरोसा है, जोड़ बदलना नहीं, जिंदगी लौटाना। शेल्बी हॉस्पिटल। आपका दर्द हमारी जिम्मेदारी। आज ही संपर्क करें। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को शेयर करने का हमारा मकसद ये था कि आप सबको हिप रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी मिले और हमारे यहाँ पे शैली में क्या प्रोसेस रहती है, पेशेंट की लाइफ साइकिल कैसी रहती है, ये इसके बारे में आपको जानकारी मिले। अब सिंस डॉक्टर विक्रम सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सो इस मौके का हम फायदा उठाते हुए इस सेशन को Q&A की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जिसको भी कोई क्वेरी है हिप रिप्लेसमेंट के लिए, आप प्लीज अपना हाथ रेज करके चैट में मैसेज कर सकते हो। यस सर, प्लीज बताइए आपका क्वेरी। मिस्टर खान। ओके नमस्कार सर। नमस्कार सर, मुझे ये जानना था कि हिप रिप्लेसमेंट के सामान्य लक्षण क्या होते हैं जिनको देख के हम ये पता लगा पाए कि जैसे कि इसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड है। हिप जॉइंट में जो प्रॉब्लम होते हैं वो 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। पहला तो है कि एक प्रकार का आर्थराइटिस होना, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। दूसरा है कि गोले में लोही का खून घूमना बंद होना स्टीरॉइड की वजह से या अल्कोहल की वजह से। तीसरा रीजन है फ्रैक्चर होना, हिप बोन का फ्रैक्चर होता है तभी भी हिप रिप्लेसमेंट। फ्रैक्चर होता है तो पेशेंट को तो मालूम पड़ ही जाता है फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें तो डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक्सरे में तुरंत दिखता है, पेशेंट खड़ा नहीं हो पाता है। आर्थराइटिस के अंदर पेशेंट को स्लोली डिसेबिलिटी आती है, स्लोली पेनफुल रहता है मूवमेंट, चलने का स्पीड कम होता है, खड़ा रहने का टाइम कम होता है, तो मालूम पड़ता है कि प्रॉब्लम है। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को विजिट करते हैं, एक्सरे करते हैं, तो मालूम पड़ता है आर्थराइटिस हुआ है।
गोले में खून घूमना कम होना वो कोविड के बाद आमतौर से कॉमन है। पहले से वो संख्या काफी बढ़ चुकी है परसेंटेज वाइज। तो वो डायग्नोसिस अगर जल्दी होता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, अगर लेट डायग्नोसिस होता है तो फिर सर्जरी ऑप्शन रहता है। आई होप कि आपको आपके सवाल का जो है वो रिस्पॉन्स मिल गया है। नाउ we'll take धन्यवाद। the next question. धन्यवाद। Thank you. We'll take the next question. Mr. Sharma. जी Mr. Sharma, please. सर नमस्ते। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती क्या है? हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, आपका कुल्ले का जॉइंट जब खराब हो जाता है तब नया जॉइंट आते हैं। वो रिप्लेसमेंट है हिप का, टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसको। उसमें एसिटामिनम जो सॉकेट है वो भी बदला जाता है और स्टेम डाल के फीमोरल बॉल भी बदला जाता है। वो 4 पार्ट में आता है। एक पार्ट स्टेम होता है, एक पार्ट कप होता है, एक पार्ट बॉल होता है वो सिरामिक का होता है महदंश, और पोली होता है वो विटामिन ई पोली होना जरूरी है। नेक्स्ट। Thank you, Mr. Sharma, for your question. We'll move on to next question. Mr. Raj. Mr. Raj, आप अपना सवाल कहिए प्लीज। मिस्टर राज, क्या आप हमको सुन पा रहे हो? मिस्टर राज, we'll come back to you again. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, मिस्टर राज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट? नमस्कार। पार्शियल हिप रिप्लेसमेंट, हाइपोलर हिप जब फ्रैक्चर एक फीमर होता है तब एसिटामिनम सॉकेट को चेंज नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली पेशेंट की उम्र अगर 70 साल से ज्यादा है तो वो कम सर्जरी में हो जाता है। उसको बाइपोलर हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं जिसमें सॉकेट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट। Thank you, Mr. Raj. We'll move on to the next question. So, Mr. Chaurasia, please share your question. सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अभिषेक बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश से। मुझे आपसे जानना है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में किस प्रकार के इम्प्लांट्स का उपयोग किया जाता है जिससे वो लॉन्ग समय के लिए पेशेंट को हेल्प करें फॉर द मूवमेंट्स एंड ऑल। सबसे पहले तो 2 टाइप के आते हैं, सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट और अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। जो सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट होता है वो थोड़ा सस्ता आता है, लेकिन अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट जो महंगा आता है वो थोड़ा ठीक भी होता है और बेटर रिजल्ट मिलते हैं। और अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट में अभी प्लाज्मा कोटिंग वाले टाइटेनियम के इम्प्लांट आते हैं वो बेहतर होते हैं। और जो प्लास्टिक यूज होता है, पोली यूज होता है कप में, वो पोली विटामिन ई पोली होना बेहतर है। और हेड जो होता है, जो बॉल होता है वो कोबाल्ट क्रोम मोलिब्डेनम का भी होता है और सिरामिक का भी होता है। सिरामिक का बॉल इज बेटर बॉल। नेक्स्ट। Thank you, Mr. Chaurasia. Thank you, sir. Yeah.
ठीक करें। एक राजकुमारी करेंगे क्वेश्चन है ऑपरेशन के 4 महीने बाद ही नी बैंडिंग से पेटी का डिग्री हो रहा है. So we have one more question from Raj Kumari ji. Sir, क्वेश्चन ये है ऑपरेशन के 4 महीने बाद भी नी बैंडिंग से पेटी का डिग्री हो रहा है. प्लीज गिव सजेशन. हिप रिप्लेसमेंट को नी फ्लेक्शन को कोई संबंध नहीं है. अगर आपने घुटने का रिप्लेसमेंट कराया है और फ्लेक्शन नहीं आ रहा है तो एक बार डॉक्टर को मिलना चाहिए. हिप रिप्लेसमेंट के साथ घुटने का मुड़ना कम होना आमतौर से पॉसिबल नहीं है. Thank you, sir. So we have one more question from Mr. Trivedi. How long does hip implant last and what factors affect its longevity? नमस्कार जी, ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका. हिप रिप्लेसमेंट आमतौर से अगर ठीक से सर्जरी की गई है तो 15, 20, 25 साल चलता है. उसमें भी अगर इम्प्लांट सिलेक्शन सही है तो 25-30 साल भी चल सकता है. प्रेजेंट इम्प्लांट जो आते हैं उसमें पोली का क्वालिटी अभी सुपीरियर हो गया है तो वो संभावना चलने की संभावना 25-30 साल तक बिल्कुल है. लेकिन सर्जन का अनुभव भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मेरे किए हुए सीमेंटेड हिप भी 25-30 साल से चल रहे हैं तो काम कैसा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट की आदत. पेशेंट अगर जमीन पे बैठता है, पेशेंट अगर लेबरर है तो जॉइंट का लंबा चलना मुश्किल है. उल्टी पालती मारता है, अगर जमीन पे बैठता है तो लाइफ कम होती है. Thank you so much, Mr. Trivedi, for this lovely question. We move on to next question. Mr. Shah. नमस्कार सर. नमस्कार सर, मुझे ये जानना है कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़े मुख्य जोखिम और जटिलताएं क्या है. नमस्कार. देखो, कोई भी ऑपरेशन बिना रिस्क का नहीं होता है, इसीलिए कोई भी ऑपरेशन प्रॉपर हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के सिवाय नहीं कराना चाहिए. कोई भी मेजर सर्जरी कराओ तो बैकअप देखना चाहिए, आईसीसीयू है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी पूरी है कि नहीं, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन करने में कभी भी दिक्कत आ सकती है मरीज को. तो ये बड़े ऑपरेशन छोटे नर्सिंग होम में नहीं करने चाहिए. और 2 टाइप के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, एक एनेस्थेशिया रिलेटेड, एक सर्जरी रिलेटेड. एनेस्थेशिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में मैं नहीं जाऊंगा. सर्जरी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, जॉइंट में इंफेक्शन हो सकता है, अगर ठीक एंगल में नहीं डाला गया है तो डिसलोकेशन हो सकता है वगैरह. नेक्स्ट. Thank you so much, Mr. Shah. We move on to next question. Mr. Jetwa. Yes, Mr. Jetwa, please share your query. સર, મારે એ જાણવું હતું કે રિવિઝન હિપ રિપ્લેસમેન્ટ સર્જરી શું છે અને એની ક્યારે જરૂર પડે છે. रिविजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब हिप रिप्लेसमेंट ऑलरेडी किया गया है और अगर फिर से करने की जरूरत पड़ती है तो उसको रिविजन कहते हैं. वो 2 टाइप होती है उसमें. एक तो अर्ली रिविजन की जिसमें अगर जॉइंट में इंफेक्शन हुआ है या बॉल और सॉकेट ठीक से नहीं डाला गया है, टेढ़ा डाला गया है, डिसलोकेशन हो रहा है तो फिर से करना पड़ता है, जॉइंट में सफाई करनी पड़ती है. या तो लंबे टाइम के बाद 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद अगर जॉइंट लूज होता है या तो प्लास्टिक
का आयु खत्म हो गया है तो भी रिवीजन करना पड़ता है, डिकोडिक रीयूज सर्जरी, which is a very complex surgery compared to primary surgery, which requires lot of infrastructure, lot of experience of surgeon and the team. अकेला वो एक सर्जन का काम नहीं है, बड़ी टीम चाहिए रिवीजन करने के लिए, और छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर में तो बिल्कुल ही नहीं कराना चाहिए। थैंक यू सर। Thank you, Mr. Jacob. We move on to next question. Mr. Trivedi. Yes, Mr. Trivedi, please share your query. Okay, we move on to next question. Mr. Venkateshwar. Mr. Venkateshwar, please share your query. Yeah, hello, sir. Good morning. Very good morning. So, for the need of joint replacement, is it because of more excessive use of the joints, or is there any genetic factor involved in the early need of joint replacement, sir? Would like to understand more about it. Well, the most important part as far as hip is concerned is our hips are genetically very safe. Any Caucasian or a white population genetically weak for hips, and they get lot of hip arthritis. Hip arthritis is very uncommon. Primary osteoarthritis of the hip is very uncommon in India and the subcontinent. However, we do get avascular necrosis of femoral head, we do get fractured neck femur, we get acetabular fractures, we get hip arthritis because of secondary to ankylosing spondylitis, gouty arthritis, or rheumatoid arthritis. So these are the reasons of why we get arthritis, but we don't get primary osteoarthritis the way we get it in knees. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for the question. We move on to next question. Mr. Ankit Parikh. Yes, Mr. Ankit, please share your query. Mr. Ankit. सर आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कोविड के बाद में यंग जनरेशन में जो एवियन की समस्या आ रही है, तो हर एवियन का समाधान हिप रिप्लेसमेंट ही है या फिर कुछ ड्रग्स के थ्रू भी हम एक रूटीन लाइफ जी सकते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है अंकित जी। ये कोविड के बाद जो स्टेरॉइड का यूज हुआ ट्रीटमेंट के लिए, उसकी वजह से गोले में खून कम घूमना कम हुआ, उसकी बदौलत एवास्कुलर नेक्रोसिस और फ्यूमरल हेड होने लगा है। और जब ये प्रॉब्लम स्टेज 1 में पकड़ी जाती है तो बिना ऑपरेशन स्टेज 1-2 में ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक कर सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट बिल्कुल करनी चाहिए। और मेडिकल ट्रीटमेंट में 3 से 5 साल तक रिलीफ मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर स्टेज 3-4 हो जाता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। तो शुरुआत के स्टेज में अगर पकड़ में आ जाता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी तरह बिल्कुल हो सकती है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। Thank you. We move on to next question. Mr. Aniket Rahul.
Yeah, Mr. Aniket, please share your query. Mr. Aniket, you are on mute. Please share your query. नमस्ते सर। नमस्ते। उम्र, मेरा क्वेश्चन सर ये है, उम्र और जीवन शैली हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के परिणामों को कैसे प्रभावित करती है? उम्र में छोटी उम्र में हिप में प्रॉब्लम होता है बिकॉज ऑफ एवीएन और बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस। तो से नी रिप्लेसमेंट 50 के बाद होता है, लेकिन हिप रिप्लेसमेंट 30-40 में भी करना पड़ रहा है। तो वो एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन there is no option when patient is not able to do the job and patient is not able to take care of the family. इसलिए हिप रिप्लेसमेंट काफी टाइम यंग एज में भी करने पड़ रहे हैं। Next. Thank you for the question. Thank you, sir. Thank you, sir. We move on to next question. Mr. Sandeep. Yes, Mr. Sandeep, please share your query. સર ગુડ આફ્ટરનૂન સાહેબ, મારે એ સર જાણવાનું છે કે બંને હિપ એક સાથે બદલી શકાય છે સાહેબ? बिल्कुल हो सकता है, दोनों हिप साथ में बदलना अच्छा भी है, क्योंकि 2 बार ऑपरेशन करना नहीं पड़े, 2 बार एनेस्थीसिया लेना नहीं पड़े, 2 बार इंजेक्शन, 2 बार फिजियोथेरेपी, और 2 बार काम करने वाला आदमी बिस्तर में आ जाए थोड़े दिन के लिए, ऐसा क्यों करने का। लेकिन जब उम्र ज्यादा होती है 70+, तो हम एडवाइस करते हैं कि बारी बारी कराओ। बाकी यंग एज में पेशेंट तो साथ में बिल्कुल कर सकते हैं। થેન્ક યુ સર, થેન્ક યુ। Thank you. We move on to next question. Mr. Malhotra. Sir, good morning. Good morning. Sir, my question is, what are the difference between uncemented and cemented hip implants, sir? वो टेक्निकल काफी है, वो मुश्किल है समझाना, लेकिन सीमेंटेड में पॉलीमिथाइल मिथाक्लेट करके बोन सीमेंट आता है, उसका यूज करते हैं उस इम्प्लांट को फिक्स करने के लिए। ताकि जो अनसीमेंटेड होता है उसमें टाइटेनियम प्लाज्मा कोटिंग लगाते हैं टाइटेनियम जॉइंट के ऊपर, तो बोन इटसेल्फ ग्रोज विद इन द इम्प्लांट, हड्डी खुद इम्प्लांट को पकड़ के रखती है। सो इट इज मोर एनाटॉमिकल एंड मोर बेटर इन माय ओपिनियन। नेक्स्ट। Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. We move on to next question. Miss Neelam Mishra. हेलो। Yeah, Miss Neelam. हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो जी। हाँ, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ पटना बिहार से, और मैंने अपनी वाइफ नीलम मिश्रा का डॉक्टर विक्रम साहब आपसे ही राइट लेफ्ट का नी रिप्लेसमेंट कराया था। अभी राइट वाले में काफ़ी दर्द बढ़ गया है, और मैं पहले अहमदाबाद में पोस्टेड था, अभी मैं पटना में आ गया हूँ। तो मुझे आपसे अपॉइंटमेंट और इसको दिखलाने का देखना था, और ये ऑपरेशन करना होगा या किस स्थिति में है। दर्द काफ़ी बढ़ गई है, चलने में दिक्कत होती है, क्या पोजिशन, ये मुझे जानना था क्या करना है। देखो, दूसरे हिप में प्रॉब्लम हुई है तो एक बार देखना तो पड़ेगा। पटना में हमारी ओपीडी चलती है, मेरे डॉक्टर विरल भाई आते हैं जी, डॉक्टर विरल गोंडलिया, वो आते हैं पटना, तो पटना में आप उनको दिखा सकते हो जी। जो भी नंबर है उनके पास फोन करके बोलो कि डॉक्टर विरल गोंडलिया का नंबर दे, आपको पटना में ही देख लेंगे। पूरे देश के पेशेंट की सुविधा के लिए हम पूरे देश में 60 सिटीज में ओपीडी चला रहे हैं, ताकि पेशेंट वहां जाके हमारे डॉक्टर को मिल सके। हर एक पेशेंट को दिखाने के लिए अहमदाबाद आने की जरूरत नहीं पड़े, तो हम पूरे देश में ओपीडी चलाते हैं, जामनगर से लेके गुवाहाटी तक। और पटना में कहाँ पर है, कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह?
डॉक्टर वीरल कौंडलिया। अच्छा, इस हॉस्पिटल में कहाँ पर हॉस्पिटल है, ये कोई आइडिया या मुझे कुछ लिंक वगैरह? भिजवा दूंगा आपको। जी 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 जी, क्योंकि मुझे ऑपरेशन तो आप ही से कराना है, चेकअप मैं यहाँ करा सकता हूँ। आपको तो आपको फिर डेट नक्की करके आप आ सकते हैं। पार्डन, आवाज कट रही है डॉक्टर साहब। सर आपको हम इस वेबिनार के बाद वो डिटेल्स और जानकारी भिजवा देंगे सर। हम अभी थोड़ा टाइम की थोड़ी किल्लत हो रही है। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू आप। भिजवा देंगे। So thank you so much everyone. Due to shortage of time, we are ending this session today. But before we go, we are dropping one message on the chat. Please do refer it, and if you have any queries, please reach out onto that number. Your queries will be answered also. Thank you so much.